Hello, everyone. A very good afternoon to all of you. I hope you are enjoying your weekend, right? And welcome to the YouTube festival. My name is Gurleen Singh, and I teach you mathematics for class 7th, right? So, I'm sorry I couldn't meet you live today, but we are going to do a very interesting topic that is percentages and its applications, right? So, I hope you're all excited to start with the topic, राइट सो लेट्स बिगिन। तो हमारी लास्ट रेगुलर क्लास में हमने किया था इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस, राइट? वी कवर्ड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सून वील डू पार्ट 2 ऑफ दिस, ताकि आपकी एनसीईआरटी की रिवीजन अच्छे से हो जाए, ठीक है? एंड मूविंग फॉरवर्ड, टुडे व्हाट वील डू, we are going to study about what are percentages, as it's also a part of our current curriculum, right? Then under its applications we are going to study how it helps us in calculating the taxes, profit loss and simple interest, right? So please do like the video and watch it till the end because it's very beneficial for you. Welcome to the class. My name is Gurleen Singh, and I'm a postgraduate in economics with maths, of course, and I have 1+ years of teaching experience through online and offline modes. Also, I'm qualified for assistant professor through the UGC NET exam. Okay. So, ये है मेरा यूट्यूब का शेड्यूल। अन अकेडमी 7th पे आई मीट यू फ्रॉम मंडे टू संडे एवरी डे लाइव एट 2 PM, राइट? और अनलर्न 6 to 8 पे मैं आपको मिलूंगी मंडे से थर्सडे 4 PM एंड फ्राइडे एंड सैटरडे एट 5 PM, ठीक है? बट बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर ऑन सैटरडे, दैट इज टुडे, आज आई विल नॉट बी एबल टू टेक योर 5 PM लेक्चर, बट अदरवाइज दीज आर द टाइमिंग्स, ओके? So what's new with Unacademy? It's the Unacademy Ask a Doubt feature, which is exclusively for our wonderful students. ठीक है? It is also totally free of cost. ठीक है? Free of cost है. आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपका डाउट है रिलेटिंग टू बेसिकली मैथ्स एंड साइंस, वो ऐसे विद इन नो टाइम इट विल गेट सॉल्व, ठीक है? आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है अपने डाउट सॉल्व करने के लिए। डोंट नीड टू कॉल अप योर फ्रेंड्स, जस्ट आस्क अनअकैडमी। कहाँ पे? ये आपको मिलेगा ऐप पर, ठीक है? तो ऐप डाउनलोड करना भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप ऐप डाउनलोड करो एंड इफ़ यू आर अ न्यू यूज़र, दे विल आस्क फॉर अ कोड, तो SPGSS10 मेरा कोड है, इस कोड को यूज़ कर लेना, ठीक है? ओके, मूविंग फॉरवर्ड, हाउ टू डू इट? यू शुड क्लिक ऑन आस्क अ डाउट फीचर, ठीक है? अपनी प्रोफाइल बनाइए, प्रोफाइल पे जाके क्लिक ऑन आस्क अ डाउट, ठीक है? देन यू विल टेक अ पिक्चर ऑफ योर डाउट और चूज फ्रॉम द गैलरी, ठीक है? गैलरी में से आप फोटो चूज कर सकते हो अगर आपने ऑलरेडी खींचा हुआ है अपने डाउट का पिक्चर, ठीक है? देन यू हैव टू क्रॉप इट आउट ताकि सिर्फ आपका डाउट दिखे, ठीक है? And then because at once you can send only one doubt na, for next time you can send your other doubt as soon as you send this one, right? So crop it out and send your doubt and they will ask you for which subject it is, तो लिख दो मैथ्स है या साइंस है, ठीक है? अभी ये मेनली इन दो सब्जेक्ट्स के लिए ही अवेलेबल है एंड देन यू विल गेट अ वीडियो सोल्यूशन फॉर इट इन नो टाइम, ठीक है? सो एज एग्जाम्स आर कमिंग, एग्जाम्स चल रहे हैं, आई थिंक इट्स वेरी नाइस एंड बेनिफिशियल फॉर यू, सो प्लीज ट्राई इट आउट ऑन द ऐप. So moving forward, lastly, Phoenix 2.0. What is Phoenix 2.0? It is India's best educator accelerator program. So we are looking for next top educators of India and we seek our students' help in finding them. So if you know anyone who has a great passion for teaching, who wants to get associated with Unacademy, ठीक है? They can fill the form given in the description box. ठीक है? फॉर्म फिल करो एंड द टीम विल रीच आउट टू देम, ठीक है? सो शॉर्टली वील जस्ट बिगिन विद आवर lecture, and if you have any doubt in that you can ask me in the comment section and I'll be more than happy to help you, right? So moving forward, percentage, ठीक है? By now we are all familiar with the concept of percentage. So what is percentage? It means percent or means quantity per 100. सेंट का मतलब होता है 100 एंड पर 100 अगर हमें कोई चीज फाइंड आउट करनी हो, 100 की प्रोपोर्शन में चीज फाइंड आउट करनी हो, देन वी यूज परसेंटेज, राइट? इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड, okay, defined as a fraction whose denominator is 100. So whenever I write a number with a denominator 100, this means I am saying 5%.
दिस मीन्स दैट आउट ऑफ 100 द क्वांटिटी इज 5. ठीक है, पर 100 ही हम ढूंढ रहे हैं और ये 100 में से 5 पार्ट्स हैं, तो मतलब इट इज 5/100 इज 5%. ठीक है, अगर मैं लिखती 5/10, ठीक है, इट मीन्स कि 10 में से 5 पार्ट्स है. बट नाउ इफ आई हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ 5/10, आई नीड टू फाइंड आउट कि 100 में से 5 कितना होगा. ठीक है, अगर 10 प्रोपोर्शनेटली 5 में से 10 पार्ट्स, 10 में से 5 पार्ट्स हैं, तो ये 100 में से कितने पार्ट्स होते. फॉर दिस व्हाट डू आई यूज द यूनिटरी मेथड. ठीक है, यूनिटरी मेथड से हमारे पास परसेंटेज का फॉर्मूला आता है. इट मीन्स दैट आउट ऑफ 10 आई हैव 5 पार्ट्स. तो 1 में से कितने पार्ट्स होते, इट वुड बी 5/10, राइट. और 100 में से कितने पार्ट्स है, इट विल बी 5/10 इंटू 100. तो यूनिटरी मेथड सबको पता है ना क्या होता है कि इफ आई हैव अ क्वांटिटी कि इसके हिसाब से इतना है, तो 1 में से कितना होगा एंड देन आई मल्टीप्लाइड द नीडेड वैल्यू. ठीक है, कि 100 में से कितना, आई विल डू 5/10 इंटू 100. तो ये कितना आया, इट इज 5/10 into 100. तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाता है, इट इज द गिवन फ्रैक्शन into 100. सो एवरी टाइम यू डोंट नीड टू अप्लाई दिस यूनिटरी मेथड, यू जस्ट सिंपली नो कि अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है तो मुझे into 100 कर देना है. ठीक है, पर ये आया कहाँ से, दैट आई एम टेलिंग यू हाउ टू डिराइव इट. सो दिस गेट्स कैंसल्ड आउट, 0 से 0 ऐसे कैंसल आउट हो जाएगा. आई एम लेफ्ट विद 50%. तो 50% का क्या मतलब हुआ, इट मीन्स 50/100 कि अगर 10 में से 5 पार्ट्स थे, मतलब हाफ पार्ट्स थे, तो 100 में से कितने होंगे, 100 के हाफ हो जाएंगे. सो इट इज एज सिंपल एज दैट. एंड जस्ट रिमेंबर, इफ यू हैव डिनोमिनेटर 100, इट इज विद परसेंटेज. तो ये परसेंटेज का साइन होता है. ठीक है, किसी भी नंबर के साथ अगर आपको परसेंटेज दिख गया, समझ लेना वो फ्रैक्शंस में 2/100 है, मतलब गिवन नंबर अपॉन 100. राइट. सो डू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज एंड आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है अच्छे से. ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड, कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस टू परसेंटेजेस. ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि कैसे कन्वर्जन फॉर्मूला होता है. कोई भी फ्रैक्शन है, इसका क्या मतलब है, इट मीन्स दैट इट इज 8 out of 40. सो हाउ मच आउट ऑफ 100, आई सिंपली डू into 100. तो ये कैंसिल आउट हो गया. 4 2s are 8, दिस इज हाउ मच, इट इज 20%. ठीक है, ऑल्सो जैसे 8/40 है. ठीक है, मैं इसे लोएस्ट फॉर्म में भी लिख सकती हूँ. 8 1s are 8, 8 5s are 40. तो अब आप जब 1/5 को into 100 करोगे, यू विल स्टिल गेट 20%. सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपकी फ्रैक्शन 1/5 में है, इट मीन्स दैट इट इज 20%. ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड, 13/5. सो दिस इज 13/5 into 100, राइट. 5 2s are 10 and 20. So 13 2s are 26, which is 260%. ठीक है, इसका क्या मतलब था, हम कहते हैं ना यहाँ पे कि 40 में से 8 पार्ट्स थे. ठीक है, तो अब ये 13/5 का ये मतलब है कि व्हाट परसेंटेज, या फिर ये जो 13 है जो मेरा न्यूमरेटर है, कितना बड़ा है ये 5 से, इट इज 260% ग्रेटर देन 5. राइट. सो नेक्स्ट इज 15/15. ठीक है, into 100 करूंगी. सो ये क्या है, इट इज 15 out of 15 पार्ट्स. ठीक है, 15 पार्ट्स में से 15 हो गया. सो इट मीन्स कि पूरा का पूरा मैंने ले लिया, विच मीन्स 100% ओनली. तो 15 से कितना रिलेटेड है, इट इज 100% ऑफ इटसेल्फ. राइट. तो इसका आंसर कितना आएगा, इट विल बी 100%. ओके, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाता है. 15 1s are 15 ऐसे करके व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज 100%. तो जो होल क्वांटिटी होती है वो मेरी 100% होती है. उसमें से मैं कुछ पार्ट्स निकालती हूँ, देन आई हैव टू डिटरमाइन कि वो कितना परसेंट होगा. सो सिंपली कन्वर्टिंग करते टाइम क्या करना है, into 100. राइट. ओके, आउट ऑफ 50 चिल्ड्रन इन अ क्लास, 35 प्ले हॉकी. व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल. ओके, यहाँ पे हॉकी आएगा. ठीक है, 2 डिफरेंट गेम्स हम कैसे कर सकते हैं. सो आउट ऑफ 50 चिल्ड्रन इन अ क्लास, 35 प्ले हॉकी. ठीक है, तो मुझे फाइंड आउट करना है कितने हॉकी खेलते हैं. सो 35 आउट ऑफ 50. ठीक है, 50 में से 35 है, तो परसेंटेज का क्या मतलब हुआ, 100 में से कितने होंगे. ठीक है, सेम यूनिटरी फॉर्मूला है. 50 में से है 35. ठीक है, 1 में से हो गया 35/50 एंड 100 में से कितना होगा. यू डोंट हैव टू शो दिस एवरी टाइम, आपको बस सिंपली into 100 करना है. ठीक है, सो दिस इज into 100. सो 50 2s are 100 होता है. सो 35 into 2 is 70. राइट.
सो 70% पीपल लाइक टू प्ले फुटबॉल. ठीक है, 70% स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना कमेंट्स में. सो नाउ वी विल बी मूविंग ऑन. ओके, सो व्हाट इज 23% ऑफ 150? ठीक है, दिस इज एमसीक्यू क्वेश्चन एंड आई रियली विश हम लोग लाइव होते देन जल्दी जल्दी से आंसर्स आने लग जाते, बट नेवर माइंड. लेट्स ट्राई इट दिस वे. ओके, सो 23% मतलब 23/100 परसेंटेज का साइन है. ऑफ 50, ऑफ का मतलब होता है हमेशा मल्टीप्लीकेशन, तो इनटू 150. ठीक है, सो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. व्हाट यू विल डू, यू विल डू 23 इंटू 15, विच विल गिव यू 345. ठीक है, नीचे एक 0 है, भूलना मत, अपॉन 10. तो ये 0 के ऊपर 5 है, 1 के ऊपर क्या आ जाएगा, डेसिमल. सो दिस बिकम्स 34.5. ठीक है, ये परसेंट नहीं है, बस इतना बोला कि 150 का जो 23% अगर मैं नंबर 150 में से निकालूं तो वो कितना होगा, इट विल बी 34.5. सो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर सॉल्विंग इट विद मी, राइट. चलो, okay, let's solve, see what other things that percentage helps us in. Okay, just a second. Okay, so percentage also helps us to compare the fractions which do not have the same denominator. ठीक है, Ashi got 340 marks out of 400. ठीक है, and Swati got 240 marks out of 300. Who scored better? And coincidentally this is the name of both my students. चलो, that's fine. ठीक है, तो अब में 1 मार्क्स जो है आशी के, इट्स 340 आउट ऑफ 400 उसके आए. ठीक है, एंड स्वाति के आए हैं 240 आउट ऑफ 300. ठीक है, तो देखने में तो ये सेम ही लग रहा है. ठीक है, 60 का डिफरेंस है टोटल में से, बट हाउ कैन आई टेल दैट हु परफॉर्म्ड बेटर? ठीक है, सो मैं तब कंपैरिजन कर सकती हूँ. हम फ्रैक्शंस में भी हमेशा क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम बनाते थे, है ना. अभी वी यूज्ड टू मेक द डिनोमिनेटर सेम. सो अभी डिनोमिनेटर सेम नहीं करेंगे, हम परसेंटेज के बेसिस पे करेंगे. उसमें क्या होगा कि आउट ऑफ 100 मुझे पता लग जाएगा कि अगर दोनों के टोटल मार्क्स 100 होते, ठीक है, अगर 100 में से एग्जाम होता दोनों का, तो कौन बेटर परफॉर्म करता. ठीक है, तो आशी की परसेंटेज होगी 340 अपॉन 400 इंटू 100. ठीक है, परसेंटेज मार्क्स निकाल रहे हैं, ये कैंसिल आउट हो गया 0 से 0. आई एम लेफ्ट विद 340 डिवाइडेड बाय 4. तो 4 8 32, 2 बचा एंड 0, तो दिस इज 85 विच इज 85%. ठीक है, अब स्वाति का देखेंगे हम आउट ऑफ 100, तो 240 अपॉन 300 इंटू 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 3 7 21, 3 8 24, तो ये हो गया 80%. तो इसका मतलब जो है कि अगर 100 में से दोनों का एग्जाम होता, आशी वुड हैव स्कोर्ड बेटर विच इज 85%. ठीक है, और स्वाति के होते 80%. तो ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स हैं, पर नाउ आई कैन कंपेयर बिकॉज इट इज आउट ऑफ 100. ठीक है, दिस बिकम्स 85 आते हैं 100 में से और इसके 80 आते हैं 100 में से. सो one of the applications of percentages is it helps us to compare the fractions which do not have the same denominator. ठीक है, so moving forward, कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू परसेंटेज. सो दिस इज वेरी इजी. आप सबको पता है ये डेसिमल पॉइंट को कैसे रिमूव करते हैं. डेसिमल जहाँ पे है उसके नीचे 1 एंड उसके बाद कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस. ठीक है, सो इट बिकम्स 40 अपॉन 100, राइट. और 40 अपॉन 100 मैंने क्या बोला, परसेंटेज क्या होता है, इट इज द फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100. सो दिस विल बिकम 40%. ठीक है, ओके. 0.7 अपॉन 10, इसको मैं जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी इट विल बी 7 अपॉन 10. अब मुझे इंटू 100 भी करना है क्योंकि डिनोमिनेटर 100 नहीं है, इट इज 7 आउट ऑफ 10. आई वांट आउट ऑफ 100 कितना होता. ठीक है, सो दिस गेट्स कैंसल्ड आउट एंड दिस इज 70%. ठीक है, या फिर 70 आउट ऑफ 100. तो 10 में से 7 हुआ, 100 में से 70 है. ठीक है, सो क्या करना है, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए
पहले उसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, फिर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के बाद मल्टीप्लाई इट बाय 100. ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. अभी तक तो हमारे बेसिक्स हैं एंड ये मैं तुम्हें पहले करवा चुकी हूँ, तो आई होप सबको क्लियर है. एंड दोज हु नॉट क्लियर विद इट, जिनको कंपेयरिंग क्वांटिटीज में डाउट था, नाउ आई होप इट इज क्लियर, राइट. चलो, कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन, तो उस केस में क्या करेंगे, 75% है. आई नो 75% मीन्स व्हाट्स, इट इज अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100, तो 75/100 हो जाएगा, ठीक है. सो आप इसको लोएस्ट फॉर्म में भी लेके आ सकते हो. सो दिस विल बी 25 into 3 and 25 into 4, ठीक है. 25 into 3 is 75 and 25 into 4 is 100, तो 3/4 फ्रैक्शंस हुई. एंड दीज आर सम इंपॉर्टेंट वंस, तो ये याद रखो, अगर कहीं पे भी 75% दिख रहा है इट मीन्स 3/4, अगर कहीं 3/4 दिख रहा है इट मीन्स 75%, ठीक है. 25 का कितना होता है, इट इज 1/4. कैसे, 25/100, और अभी मैंने बताया 25 1 is 25, 25 4 is 100, तो 1/4 हो गया. एंड 50% ऑफ समथिंग इज हाफ, ठीक है, विच इज 1/2, क्योंकि 51 is 50, 52 is 100. So whenever you have 50%, it's 1/2, 25% is 1/4, 75% is 3/4, ठीक है. सो एंड मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में 20% कितना होता है, इट इज 1/5. तो कुछ मेन है, लर्न कर लो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट. Okay, moving forward. So Tina decided to make a sandwich. So we have a question here and I hope all of you are solving it with me. ठीक है, Tina decided to make a sandwich. She spent 25% of her money on bread, 20% on sauce, 30% on vegetables. What percentage of her money she spends on cheese? ठीक है, सैंडविच बना रही है, सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने हैं उसने, तो वी डोंट नो कि उसके पास कितना मनी था, पर जो भी मेरा टोटल मनी होता है ना, ठीक है, लेट टोटल ऑफ समथिंग, ठीक है, टोटल मनी बी 100%. 100% ही होगा, उसके पास जितना मनी है इट विल बी 100% ऑफ इटसेल्फ, ठीक है. तो उसके बाद शी स्पेंड 25% ऑन ब्रेड, तो ब्रेड पे हो गया ऑलरेडी कितना, 25%. फिर सॉस पे शी हैज स्पेंड 20% ऑफ द मनी. अब मुझे पता नहीं है हाउ मच इट इज, ठीक है, बट आई नो द परसेंटेज, ठीक है. तो वेजीज पे कितना हो गया, 30%. अब बचा कितना मेरे पास, कितने परसेंट बचा होगा, सो 30, 40, 50, 60, 70, 75, ठीक है. टोटल मनी स्पेंट अब तक, ठीक है, स्पेंट मनी कितना, इट इज 25 + 20 + 30 which is equal to 75% of her total money is spent, ठीक है. तो अगर टोटल 100 और 75 स्पेंट हो गया, बाकी का वो चीज पे स्पेंड करिए, तो हाउ मच इट इज, 100% minus 75% which is equal to 25% of her money is being spent on cheese. So what does this question tell you, that whole of something is 100%, और उसमें से अगर मैं परसेंटेज लेती रहती हूँ, ठीक है, इफ आई टेक आउट सम ऑफ इट, जो लेफ्ट होगा उसको मेरे को 100 में से माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज 100 मीन्स होल, ठीक है. सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन दैट हाउ डिड वी डू दिस क्वेश्चन, and if you have any doubt you can ask me in the comment section. I'm really sorry I couldn't meet you live today, but I'll make it up for it tomorrow, right. I hope you're missing me also. चलो, applications of परसेंटेजेस, ठीक है. अब हम डिफरेंट एप्लीकेशंस करेंगे कि परसेंटेज हमें किस तरह हेल्प करता है. तो उससे पहले इट वाज इम्पोर्टेंट टू हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट्स परसेंटेज, अपने कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप करने थे, तो अब हम उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट टैक्सेस, कि हाउ डज परसेंटेज हेल्प्स अस इन टैक्सेस. तो कुछ 3 मेन टैक्सेस के बारे में बात करेंगे. दिस इज ऑल्सो टॉपिक ऑफ योर 8th स्टैंडर्ड. सो व्हाट इज अ सेल्स टैक्स? आई विश आई कुड आस्क यू, बट आई एम नॉट लाइव, आई जस्ट रिमेम्बर्ड. सो सेल्स टैक्स क्या होता है? इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. तो इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब है? जिस पर्सन पे ये लेवी होते हैं ना, मतलब जिस पर्सन की ये लाइबिलिटी है, ठीक है, वो नहीं पे करता, वो अपनी लाइबिलिटी टैक्स की, मतलब उसको जो पेमेंट करनी थी वो किसी और को पास आउट कर देता है, एंड उससे वो पैसा लेकर ही पेज टू द गवर्नमेंट.
तो इस केस में सेल्स टैक्स का क्या है, इट इज लेविड ऑन द सेलर। जो सेलर है जिससे हम गुड्स खरीदते हैं, जो शॉपकीपर है, ठीक है, उसकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी होता है कि किसको पे करना है, ठीक है। जो सेलर है उसको पे करना होता है गवर्नमेंट को, बट वो क्या करता है, वो जो परसेंटेज है ना, वो जो प्रोडक्ट है उसमें ऐड कर देता है और बायर से लेता है। वो अपनी पॉकेट से नहीं देता, ही जस्ट इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर प्राइस पे वो परसेंटेज लगा देता है, एंड देन वी हैव टू पे इट इन फॉर्म ऑफ हायर प्राइजेस, ठीक है। It is levied on the seller by the government but is paid by the buyer as a percentage of the price of the good, ठीक है। तो इस केस में परसेंटेज होगा कि अगर मेरे प्राइस है 100 रुपीज है किसी चीज का प्राइस, ठीक है, उस पर 10% सेल्स टैक्स लगा हुआ है, ठीक है, तो मुझे 100 पे से 100 पे 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सो व्हाट इज 10% ऑफ 100? इजी, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, इट इज ₹10। सो आई हैव टू पे 10 रुपीज एक्स्ट्रा फ्रॉम माई पॉकेट बिकॉज द टैक्स हैज बीन लेविड ऑन द सेल्स मैन। सो टोटल कॉस्ट पड़ जाएगी मुझे ₹100। तो टोटल कॉस्ट पड़ जाएगी 110 रुपीज की, राइट। देन वी हैव वैल्यू एडेड टैक्स। दिस टैक्स इज लेविड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन whenever value is added to the product, ठीक है। ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, जिसको हम बेच रहे हैं वो पे करता है, नॉट द पर्सन हु इज प्रोड्यूसिंग द गुड्स। एंड वैल्यू एडेड मतलब हर जब भी वैल्यू ऐड हो रही है प्रोडक्ट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो वुड से फर्नीचर बनता है, ठीक है, तो वुड कटर ने वो बेचा टू दी पर्सन हु मेक्स फर्नीचर आउट ऑफ इट, हु कट्स द वुड इनटू बिग लॉग्स, राइट, कि अच्छा इन अ फिनिश करता है वो वुड को, जिससे वो फिनिश मीन्स पॉलिश इट, राइट। सो वुड काट के उसने आगे दिया, एंड जब उसने बेचा उस पे टैक्स लगेगा, एंड द टैक्स विल बी पेड बाय द पर्सन जिसने जिसको वुड कटर ने वुड बेची, ठीक है। दैट पर्सन विल देन कट इट एंड पुट इट इनटू स्ट्रेट पीसेस, ठीक है, एंड वो आगे फर्नीचर मेकर को बेच देगा, तो वो टैक्स लगेगा फर्नीचर मेकर पे जिसको बेचा है। देन द फर्नीचर मेकर विल गिव इट टू द पॉलिश वन, पॉलिश करने के लिए अच्छे से फर्नीचर को, तो उस पे वो टैक्स लगेगा। सो इट इज पेड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, जैसे जैसे चीज आगे बढ़ती है, एंड फाइनली व्हेन वी बाय द फर्नीचर वो टैक्स हम पे लगेगा। Okay, so it is also an indirect tax like the sales tax. So ये भी कैसे होता है? It is also a percentage of price that is paid by the buyer. Okay. Lastly, we are coming to GST, that is goods and services tax. ये कौन सा टैक्स होता है? ये सबसे recent tax in India, that is on July 1, 2017. The government of India introduced the goods and services tax. तो GST का full form क्या है? It's goods and services tax, ठीक है। दैट रिप्लेस्ड मोस्ट ऑफ द टैक्सेस इन इंडिया। जैसे अब वैट वगैरह बहुत कम बहुत कम प्रोडक्ट्स पे लगता है, मेनली जीएसटी इज लेविड ऑन ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स, ठीक है। पहले एक्साइज ड्यूटी थी, ऑक्ट्रॉय, वैट, सर्विस टैक्स, बहुत सारे टैक्स थे। अब जो जीएसटी है वो सिंगल टैक्स हो गया है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट परसेंटेज लगता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टैक्स स्लैब्स, मतलब प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है। एंड डिफरेंट जो है कैटेगराइजेशन हो गई है उसके हिसाब से लगता है। तो बस आपको ये सब याद नहीं करना है, यू दीज आर द मेन टैक्सेस, आई वाज जस्ट गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन अबाउट, एंड नाउ वील सॉल्व द क्वेश्चंस based on when we buy something and tax is levied on us, so what will be our cost price in such cases, right? Okay, just a second, let me see if it's still recording. Okay, yes. So if you guys are missing me live, please do write in the chat that you are missing me, because I want to see that if my students really miss me or not. Chalo. So let's move forward. Okay, find the buying price of 5 kg of rice at ₹15 per kg when 5% sales tax is added on the purchase. मतलब जो प्राइस है उस पे ऐड हुआ है, तो मुझे 5% एक्स्ट्रा देना है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस बिफोर टैक्स, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस बिफोर टैक्स,
बाइंग प्राइस मीन्स जो एंड में हम दे रहे हैं, ठीक है, या फिर कॉस्ट प्राइस ही होता है बाइंग प्राइस, दैट इज बीइंग पेड बाय द कस्टमर. सो दिस इज 5 kg एट ₹15 पर kg. ठीक है, ये पता है ना यूनिटरी मेथड्स होता है कि 1 kg के लिए अगर ₹15 दे रही हूँ मैं, राइट, सो हाउ मच विल आई पे फॉर 5 kg? इट इज 15 into 5. ठीक है, this is 75 rupees. So this is 5 kg into ₹15, which is equal to ₹75. ठीक है, तो 75 rupees I am paying. ठीक है, 75 rupees I am paying before tax. अब उस पर 5% ऐड करना है सेल्स टैक्स. ठीक है, सो सेल्स टैक्स जो मेरी कॉस्ट है उस पर एडिशनल लगना है, दैट इज 5% ऑन ₹75. सो दिस बिकम्स 5/100 into 75, राइट. तो इसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई. 5 5 25, 7 5 35, 36, 37, 37500 डिवाइडेड बाय 100. सो ये कितना बनेगा? दिस विल बिकम ₹3.75. 3.75 जो है मेरा टैक्स है. तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टोटल सीपी कितना होगा? इट विल बी 75 प्लस 3.75. तो ये 0 इसको प्लस कर देंगे. 5 7, ठीक है, 5 6 7 8 एंड 78.75 रुपीज इज माई टोटल कॉस्ट. ठीक है, जब मेरे पे 5% एडिशनल सेल्स टैक्स लगेगा. ठीक है, और ये जो 3.75 रुपीज मैंने एक्स्ट्रा दिया ये किसको जाएगा? दिस विल गो टू द गवर्नमेंट. हु विल पे इट? द सेलर विल पे इट. बट कौन दे रहा है? ठीक है, किसकी पॉकेट में से जा रहा है? इट इज द कंज्यूमर. ठीक है, अब ये मत पूछना ऐसा क्यों, दैट इट इज इनजस्टिस. इट्स ऑलवेज बिन लाइक दिस. टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे ही लेवी होते हैं. बेसिकली इट्स फॉर द कंज्यूमर, बट यू नो ऐसे ही कहते हैं कि सेलर को पे करना है, राइट. सो डोंट वरी, तुम्हें पे नहीं करना, अभी मम्मी पापा को पे करना है. यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चंस, राइट. चलो, ओके. Aman purchased a hair dryer for ₹5,400 including 8% VAT, value added tax. ठीक है, अमन फाइनल बायर था तो उस पर 8% VAT लगा. फाइंड द प्राइस बिफोर VAT वॉज एडेड. तो आजकल ये वैट एंड ऑल नहीं लगता, अभी जीएसटी ही लगते हैं मोस्टली कंज्यूमर गुड्स पे. बट फॉर क्वेश्चंस प्रैक्टिस इट्स फाइन कि मैं जीएसटी लिख रही हूँ या वैट लिख रही हूँ. सो यू जस्ट शुड नो कि ये कैसे होगा. ठीक है, ओके. ओके, यहाँ पे एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ थी. एक मिनट. ओके, अमन परचेज्ड अ हेयर ड्रायर, ठीक है, फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग 8% वैट. तो अब मैं इसमें या तो ऐसे, आई हैव टू वेज, लाइक आई कैन अज्यूम कि पहले प्राइस एक्स था, फिर उस पर 8% ऑफ एक्स हुआ एंड द टोटल इज 5,400. बट आई गिव यू वन मोर मेथड. ठीक है, उसमें क्या करना है? वी विल अज्यूम, ठीक है, लेट ओरिजिनल प्राइस बी ₹100. मैंने अज्यूम कर लिया कि वो 100 था, बट वो 100 नहीं है, मुझे पता है, मैंने जस्ट अज्यूम किया. ठीक है, फिर उस पर 8% टैक्स लग गया. ठीक है, सो प्राइस आफ्टर टैक्स कितना हो गया? ध्यान से समझना इसको. आफ्टर टैक्स इट इज हाउ मच? 8% ऑफ 8% भी ऐड हो जाएगा, तो 8% ऑफ 100 इज हाउ मच? इट इज 8 ओनली. ठीक है, सो इट विल बी 100 plus 8 which is ₹108 is my price after tax. ठीक है, अब मुझे गिवन है कि it is 5,400 after tax. तो क्या मैं प्रोपोर्शन चल सकती हूँ? दैट 108 से 108 की अगर वैल्यू प्राइस आफ्टर टैक्स की वैल्यू इज 5,400. ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 5,400
डिवाइड, ये यूनिटरी मेथड ही है, डिवाइडेड बाय 108, ठीक है, इनटू 100, राइट, लाइक दिस. तो अब आई विल सॉल्व इट एंड आई विल गेट इट कि प्राइस बिफोर टैक्स कितना था. ठीक है, तो ये होता है इंटू 5, हाँ ठीक है, ये हो जाता है 8108 इंटू 50 करोगे यू विल गेट 5400 विच इज 50 इंटू 100 इज ₹5000. तो ₹5000 इज व्हाट, इट इज माय ओरिजिनल प्राइस, कि ओरिजिनल प्राइस कितना था. ठीक है, सो दिस इज द प्रोपोर्शन कि अगर 100 है, 100 में 8% ऐड किया तो वो 108 हो गया. ठीक है, तो फिर अगर अब मैंने 100 में 8% ऐड किया 108 हुआ, तो अगर 5400 वुड बी प्रोपोर्शनेट टू 108, तो 100 की वैल्यू कितनी होती है. सो दिस विल हेल्प यू वेरी मच इन योर हायर क्लासेस व्हेन यू सॉल्व कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चंस एंड ऑल. तो ये मेथड इज बेटर देन डूइंग एक्स वाला मेथड. ठीक है, अभी एक क्वेश्चन हम एक्स वाले मेथड से भी सॉल्व कर लेंगे टू सी कि वो कैसे होगा. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन कि कैसे करना है. वी अज्यूम इट इज 100. ठीक है, उसमें प्राइस आफ्टर टैक्स ऐड करेंगे, दैट इज 8% और ऐड कर देंगे. सो इट इज ₹108. अब 108 की वैल्यू अगर मेरे को पता है कि आफ्टर टैक्स इट वाज 5400, तो आई इक्वेटेड कि 108 इज 5400, तो 100 की वैल्यू कितनी हुई, यूनिटरी मेथड है, 5400 अपॉन 108 इंटू 100 एंड यू विल गेट द ओरिजिनल प्राइस, राइट. ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं. ओके, Sheena bought a table for ₹4400 including a tax of 10%. ठीक है, इसमें भी टैक्स जो है इंक्लूडेड है. Find the price of the table before VAT was added. ठीक है, तो do it with the same method that I just taught you. ठीक है, solve it with me everyone. Okay, Sheena bought a table for ₹4400. ठीक है, cost price including tax कितना है, इट्स गिवन टू बी ₹4400. ठीक है, अब मुझे फाइंड क्या करना है, प्राइस ऑफ टेबल बिफोर दैट. लेट द ओरिजिनल, यू विल राइट देयर कि आप किसको क्या अज्यूम कर रहे हो. ठीक है, लेट द ओरिजिनल प्राइस बी ₹100. ठीक है, सो प्राइस आफ्टर टैक्स कितना हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस 10% और ऐड करना है. ठीक है, 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस ही होगा, तो 10% ऑफ 100 इज 10. सो प्राइस आफ्टर टैक्स इज हाउ मच, इट इज ₹110. ठीक है, सो नाउ आई हैव कि आफ्टर टैक्स की वैल्यू 4400 है. तो अगर 110 सॉरी हाँ, अगर 110 की वैल्यू 4400 मेरे को गिवन है, तो जो 100 है जो मैंने ज्यूम किया था ओरिजिनल प्राइस पे होना चाहिए 100, तो 100 कितना हो जाएगा, इट इज 4400 डिवाइडेड बाय 110. ठीक है, इनटू 100. सो दिस इज द फॉर्मूला. याद कर लो कि अगर आफ्टर टैक्स है इट इज 4400 इंटू 100 अपॉन 110. ठीक है, दिस वे, so this gets cancelled out. 11 4s are 44 and 0 भी है, don't forget. So this becomes 400 into 10 which is ₹4000. ठीक है, तो टैक्स ऐड करने से पहले the value was 4000. ठीक है, तो 10% टैक्स ऐड किया तो 10% कितना होता है 4000 का, इट इज 400. ठीक है, चेक भी कर सकते हो, 10% ऑफ 4000 इज 400, और ये 400 किस में ऐड होना था, 4000 में, विच बिकम्स ₹4400 विच इज द फाइनल कॉस्ट जो मुझे पे करनी है एज अ कंज्यूमर. ठीक है, I hope it's clear to everyone, and if you have any doubt I'll solve it in the next live session for sure. Okay, and I hope तुम sincere होके पढ़ रहे हो अच्छे से सब लोग, and don't forget to like the video. No matter if it's live or it's a premiere, you still have the like target as 100. ठीक है, तो मैं चाहती हूँ तुम्हारे एग्जाम्स में 100 मार्क्स आए, तो यू हैव टू ऑल्सो रिटर्न मी द फेवर बाय लाइकिंग द वीडियो. ओके ओके, समथिंग इज हैपनिंग टू माई थ्रोट, गला खराब हो गया. हाँ चलो, जस्ट सेकेंड.
Okay, so we have a little information for you that how to install the Unacademy app. The Unacademy app is totally free of cost. आपको Google Play पे what happened? आपको गूगल प्ले पे या ऐप स्टोर दोनों पे मिल जाएगी. ऑन एप्पल एंड एंड्रॉयड इट्स बोथ अवेलेबल फॉर यू. ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. क्या डाउनलोड करना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप. सो इट इज एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है, बहुत बेनिफिशियल है. क्यों? एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है ऐप पर. ठीक है, अगर आपको क्विजेस करने हैं, स्पेशल क्लासेस करनी है, तो ये सब आपको ऐप पर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड इफ यू आर अ न्यू यूजर, SPGSS10 मेरा कोड है, ये कोड जरूर यूज करना है. ठीक है, ओके. Plus subscription की कुछ benefits. Unacademy provides you with a plus subscription which has a little fee, but the benefits are enormous as related to the cost. ठीक है, so India's best educators are going to be provided to you. ठीक है, interactive live classes, live test and quizzes and structured courses and PDFs. ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? प्लस सब्सक्रिप्शन के अंडर. और SPGSS10 इज माई कोड. ये कोड यूज करके क्या करना है? आपको 10% ऑफ मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन पे. ठीक है, 10% ऑफ मिल जाएगा एंड कॉस्ट और भी ज़्यादा कम हो जाएंगी. सो यू कैन चूज आपको किससे पढ़ना है. सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको PDF फॉर्म में अवेलेबल होंगे. ठीक है, लाइव टेस्ट हैं, क्विजेज हैं. यू कैन डू ऑल ऑफ दैट इन द प्लस सब्सक्रिप्शन. एंड आइकॉनिक में क्या होगा? प्लस के सारे बेनिफिट्स जो अभी मैंने आपको 4 मेजर बेनिफिट्स बताए वो सब तो मिलेंगे ही. उसके अलावा यू गेट अ पर्सनल मेंटर एंड लाइव डाउट सोल्यूशन. तो पर्सनल मेंटर उन लोगों के लिए है जिनको दोज आर हैबिचुअल ऑफ होम ट्यूशंस, या वो किसी सब्जेक्ट में वीक हैं. ठीक है, पर्सनल अटेंशन चाहिए, इतनी जल्दी नहीं ग्रास्प कर पाते कॉन्सेप्ट्स को. सो दे कैन गो फॉर अ पर्सनल मेंटर टू अचीव गुड मार्क्स इन देयर एकेडमिक्स. ठीक है, लाइव डाउट सोल्यूशन, दैट इज यू गेट अ सोल्यूशन फॉर ऑल योर डाउट्स इमीडिएटली लाइव. ठीक है, जितने मर्जी डाउट्स आप पूछ सकते हो. डोंट इवन हैव टू वेट. ओके, जस्ट अ सेकंड किड्स. ओके, सो क्या है? 6 to we have packages for different months. 6 months, 12 months, 15 months, ऐसे करके packages हैं. तो it's for classes 6 to 12. So if you know anyone from 6 to 12 who might be interested in the subscription, please do inform him or her, right? And then packages पे की cost पर you will still get 10% off if you use the code SPGSS10. तो इससे क्या होगा? 10% off मिल जाएगा. ठीक है, एंड मूविंग फॉरवर्ड आइकॉनिक का भी सेम है. आइकॉनिक की फी थोड़ी सी ज़्यादा है बट बेनिफिट्स भी ज़्यादा है. और अगर पर मंथ कॉस्ट देखते हो, प्लस की बात करें, इट्स जस्ट अराउंड 1000 और 1100 पर मंथ, इन विच यू आर गेटिंग ट्यूशंस फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स. नोट्स मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल रहे हैं, क्विजेज हो रहे हैं, जस्ट फॉर रुपीज लाइक 1000 और 1200 per month. So please do think about it, and if you think about it, do use my code SPGSS10. ठीक है, तो आइकॉनिक में भी प्राइजेस पैकेजेस हैं डिफरेंट मंथ्स के लिए. यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस एंड देन यू गेट 10% ऑफ इफ यू यूज द कोड, राइट. लास्टली वी हैव फ्री स्पेशल क्लासेस एंड फ्री टेस्ट सीरीज. ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा? ऐप पर मिलेगा. ठीक है, और SPGSS10 मेरा कोड है. ये कोड यूज करना है. अगर आप न्यू यूजर हो तो दे विल आस्क फॉर अ कोड. So one time code you have to put this, and then you can enjoy unlimited benefits on the app which are totally free of cost, right? Chalo, moving forward. Okay, an article is marked at rupees 15,000, right? Everybody read the question, and अगर समझ आ गया हो तो please do start solving also. Okay, an article is marked at rupees 15,000. A dealer sells it to a consumer at 10% profit. If the rate of GST is 12%, find SP of the article. ठीक है, selling price of the article excluding tax. कि अभी टैक्स नहीं लगाए और उसके बाद टैक्स लगेगा. ठीक है, so let's do the first part. तो सेलिंग प्राइस कितना है? मार्क्ड प्राइस. मार्क्ड मतलब
कि मतलब जितने का मिनिमम यू आर सेलिंग द गुड इज हाउ मच, इट इज ₹15,000। ठीक है, इस पे प्लस क्या कर रहे हैं हम, 10% प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट इज ऑफ ऑन द मार्क्ड प्राइस, तो 10% ऑफ व्हाट, 10/100 ऑफ 15,000 विच इज गोइंग टू गिव मी हाउ मच, ₹1500 एक्स्ट्रा जो है मैं कंज्यूमर को बेच रही हूँ। ठीक है, तो SP ऑफ आर्टिकल, ठीक है, अभी टैक्स नहीं है, वी डूइंग द फर्स्ट पार्ट एक्सक्लूडिंग टैक्स। ठीक है, विल इज हाउ मच, इट इज 15,000 प्लस 1500, राइट, विच इज इक्वल टू 0056। ठीक है, इट इज ₹16500। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस पे टैक्स भी लगाना है। कितने परसेंट टैक्स लगाना है, 12%। अब 12% किस पे लगेगा, जो मेरी वैल्यू है, जो ऑलरेडी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस है 16500, सो 12% ऑफ 16500 इज हाउ मच, ओके, सो ये हो जाएगा 1650 प्लस 2 3। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी 1980। ठीक है, ये मेरा टैक्स का अमाउंट है जो अभी लगेगा, एंड ये अमाउंट किस में ऐड होगा, इन माय सेलिंग प्राइस, जो मेरा फाइनल सेलिंग प्राइस होगा। SP प्लस टैक्स इज हाउ मच, 16500 प्लस 1980। ठीक है, तो ये आपका आएगा 0814, ठीक है, 18480 is my total price after I have levied the tax on the cost price. ठीक है, I hope it's clear to everyone कि पहले हमने सेलिंग प्राइस निकाला जिसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं था, सिर्फ प्रॉफिट इंक्लूडेड था हमारे डीलर का। ठीक है, उसके बाद डीलर ने GST जो पे करना है गवर्नमेंट को, वो भी उसने हमसे चार्ज किया, तो 12% अगेन इट इज लेविड ऑन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो जो टैक्स का अमाउंट है ये किसको जाएगा, दिस विल गो टू द गवर्निंग अथॉरिटी। ठीक है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, डिपेंडिंग अपॉन द आर्टिकल। चलो, आई होप टैक्सेस आर क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम टैक्सेस का। An article was purchased for ₹1239 including GST of 18%. Find the price of the article before GST was added. तो इसको एक्स वाले मेथड से करके देखते हैं। ठीक है, एक बार। और वैसे दूसरा मेथड कौन सा है, assumption वाला मेथड कि let the price of the article before GST be 100। ठीक है, चलो अब इसमें क्या करते हैं, let the original price be रुपीज X। ठीक है, X है, सो उस पे क्या हुआ, चीज, अच्छा ये टोटल पड़ा था, 18% GST लगा, तो टैक्स कितना है, इट इज 18% ऑफ X। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस में मैंने जब टैक्स का परसेंटेज ऐड किया, मेरे पास टोटल कितने आया है, इट इज ₹1 2 3 एंड 9। ठीक है, तो जब आप इसका LCM लोगे, LCM लेना आता है ना सबको, दिस विल बिकम 100x प्लस 18x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1239। ठीक है, दिस बिकम्स 118x, ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 123900। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 123900 डिवाइडेड बाय 118। ठीक है, सो इसको जब आप when you will cut it out, when you will divide, you will get 1050। ठीक है, x इज ₹1050 और x है क्या, जो हमने ओरिजिनल प्राइस अज्यूम किया था x का। सो आई गॉट माई ओरिजिनल प्राइस, जो मुझे फाइंड करना था, फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड, एंड दिस प्राइस वॉज ₹1050। अब जब आप इसका 18% करोगे ना, you will get 1239। so please try it out your to see if the answer is right or wrong। ठीक है, we can also do it by assuming 100, फिर वो हो जाता 118%। सो अब तक तुम्हें पता लग गया कि वो मेथड कैसे यूज करना है, सो ट्राई टू सॉल्व इट बाय दैट मेथड ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि उससे हमारे ये एक्स एंड कैलकुलेशंस थोड़ी रिड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, ओके, so let's move forward, and till now if you have any doubt please do ask me in the comment section। ठीक है, and
Don't forget to like the video. The like target is still 100. I know it's a premiere video. तुम लोग नहीं आओगे अगर मैं लाइव नहीं हूँ, ठीक है? बहुत प्यार है तुम्हें मुझसे, बट स्टिल अगर इतना ही प्यार है, सो प्लीज वॉच द वीडियो. एंड वैसे भी इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है, एज स्टूडेंट्स, बिकॉज नाउ यू विल बी गोइंग इन 8th एंड यू आर गोइंग टू लर्न ऑल दिस ओवर हियर, ओवर देयर, ठीक है? तो जिनके एग्जाम्स खत्म हो गए उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है. चलो, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. प्रॉफिट एंड लॉस, हमारी फेवरेट चीज. हाँ, तो प्रॉफिट कब होता है? व्हेन इज प्रॉफिट? व्हेन द प्रॉफिट किसको होगा? ऑफ कोर्स प्रॉफिट एंड लॉस किसको होता है? सेलर को होता है, ठीक है? सो अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, तो अगर सेलर खरीद के लाया है 100 रुपीज का कोई आर्टिकल एंड ही इज सेलिंग टू द कंज्यूमर एट 150 रुपीज, तो ऑब्वियसली जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है एंड जो मेरा प्रॉफिट है वो कितना होगा? इट विल बी SP माइनस CP विच इज इक्वल टू 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 50. आई नो ये तुमने माइंड में ही कर लिया होगा, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम लोग. लॉस कब होगा? लॉस भी किसे होता है? सेलर को होता है. बेसिकली जो भी सामान बेच रहा है, अब उसको कॉस्ट ज्यादा की पड़ी, ही बॉट इट फॉर लेट्स से 200 का लेकर आया कॉस्ट प्राइस, ठीक है, बट यू नो चीज थोड़ी पुरानी हो गई, आउट ऑफ फैशन हो गई, थोड़ी सी डिफेक्टिव हो गई. सो द बायर सेड आई विल बाय इट बट आई विल नॉट गिव यू 200 फॉर इट, ठीक है? सो ही गेव ओनली 100 फॉर इट. तो सेलिंग प्राइस 100 हो गया एंड लॉस कितना हुआ? लॉस इस केस में होता है CP माइनस SP, तो विच इज इक्वल टू 200 माइनस 100 विच विल गिव मी ₹100 एज द लॉस, ठीक है? अब हम इसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस निकालना तो हमें आता है, तो अब हम क्या करेंगे? वील फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज, राइट? ओके, जस्ट अ सेकेंड. Okay. Profit and loss percentage. So how do we calculate it? It is profit. ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज मुझे फाइंड आउट करना है. परसेंटेज क्या होता है? पर 100 मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? सो उसका फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है? तो चाहे मेरा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, चाहे मेरा कॉस्ट प्राइस कम है, चाहे प्रॉफिट हो रहा है, चाहे लॉस हो रहा है, जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा मेरा कॉस्ट प्राइस ही रहेगा बोथ केसेस में, ठीक है? प्रॉफिट परसेंटेज में इट्स प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 एंड लॉस परसेंटेज में इट्स लॉस अपॉन CP इंटू 100, ठीक है? आई होप द फॉर्मूलाज आर फ्रेश इन योर माइंड एंड यू ऑलरेडी नो देम, ठीक है? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, लॉस अपॉन CP इंटू 100. सो हमें प्रॉफिट हुआ था 50 का एंड लॉस हुआ था 100 का. चलो ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल्स बाद में करेंगे. लेट्स क्वेश्चंस में प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है? चलो, सम अदर फॉर्मूलाज. सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. थोड़ा ब्लरी है. तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन या प्रॉफिट इनटू SP, ठीक है? तो अगर आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है और आपसे पूछेंगे कि CP कितना है, तो डायरेक्टली यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला विच इज 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट. प्रॉफिट की सिर्फ वैल्यू, ठीक है? अगर 5% गिवन है तो आप बस 5 लिखोगे, प्लस प्रॉफिट, ठीक है, इनटू SP. ये पहला फॉर्मूला है CP फाइंड आउट करने का, ठीक है? फिर अब मेरे पास SP नहीं गिवन, CP गिवन है, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा? एंड प्रॉफिट है. अब इसमें उल्टा हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ठीक है? यहाँ पे ऊपर 100 था, यहाँ पे नीचे 100 आ जाएगा इन केस ऑफ सेलिंग प्राइस. और क्या है? इनटू CP भी करना है, हाँ, इनटू कॉस्ट प्राइस ऑल्सो, ठीक है? SP में क्या होगा? व्हेन वी हैव लॉस. ये मेरा है लॉस के लिए, तो लॉस हो रहा है और मुझे सेलिंग प्राइस ढूंढना है. इट इज हाउ मच? इट इज 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इनटू CP, ठीक है? एंड लास्टली अगर मेरे को कॉस्ट प्राइस ढूंढना है और SP गिवन है और लॉस है, तो उल्टा हो जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस लॉस, ठीक है, इनटू SP, ठीक है? सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. प्लीज नोट डाउन दीज फॉर्मूलाज. तुम्हारी कैलकुलेशंस बहुत रिड्यूस होने वाली हैं इससे, ठीक है? एंड ऑल्सो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. ओके,
मीनाक्षी bought 2 fans for ₹1200 each, ठीक है. She sold one at a loss of 5%, ठीक है. 2 फैंस लाई थी, एक पे लॉस हो गया उसे 5% का और एक पे उसको 10 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है. तो मुझे क्या फाइंड करना है, आई हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल एंड ऑल्सो द ओवरऑल प्रॉफिट एंड ओवरऑल लॉस, कि उसको लॉस हुआ है या उसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है. तो फर्स्ट फैन की बात करते हैं. तो कॉस्ट प्राइस कितना है फर्स्ट फैन का, इट इज ₹1200 फॉर मीनाक्षी, ठीक है. शी सोल्ड वन एट लॉस ऑफ 5%, तो उसको लॉस हुआ और लॉस किस पे होता है, 5/100 ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है. 5/100 ऑफ कॉस्ट प्राइस होगा विच इज इक्वल टू 1200. चलो ठीक है, 5/100 ऑफ 1200, तो ये कितना हुआ, 12 5 60, ₹60 का लॉस हुआ. तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ फर्स्ट फैन का, इट इज 1200 माइनस 60 विच इज इक्वल टू ₹1140, ठीक है. तो पहला फैन उसको 1140 में बेचा और कॉस्ट प्राइस था हमारा 1200. तो आई कैन क्लियरली सी कि लॉस ही हो रहा है एंड उन्होंने बताया लॉस हो रहा है, ठीक है. सो व्हाट अबाउट द सेकंड फैन, सेकंड फैन में क्या हुआ, जो मेरा कॉस्ट प्राइस है इट इज स्टिल ₹1200, ठीक है. अब इस पे प्रॉफिट हुआ है कितने का, 10% का, तो 10/100 ऑफ कॉस्ट प्राइस विच इज 1200. तो ये कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0, दिस इज ₹120 का प्रॉफिट, ठीक है. तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, इट इज 1200 प्लस 120 विच इज हाउ मच, इट इज रुपीज, ये 023 1320, ठीक है. हाँ ठीक है. अब क्या करना है, अब मुझे फाइंड करना है कि ओवरऑल लॉस हुआ है या गेन हुआ है. तो जो दोनों जो सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 है, लेट्स जस्ट ऐड इट, ठीक है. तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, 1320 प्लस 1140 विच इज इक्वल टू 04563 एंड 2460, ठीक है. एंड जो मेरा कॉस्ट प्राइस था, टोटल कॉस्ट प्राइस अगर एक 1200 का था तो टोटल कॉस्ट प्राइस वॉज ₹2400. कैसे आया 2400, 1200 ईच था तो 1200 इंटू 2 किया. तो आई कैन क्लियरली सी जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो मेरे कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, ठीक है. सो 2460 माइनस 2400 कितना हुआ, दिस इज ₹60. तो ₹60 का उसको क्या हो रहा है, ही इज गेटिंग अ गेन ऑफ ₹60, ठीक है. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, राइट. चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना अगेन इन द कमेंट सेक्शन, या फिर नेक्स्ट लाइव में आप मुझे पूछ सकते हो अगर आपको इस क्लास में कोई भी डाउट होगा, ठीक है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. A shopkeeper sells a commodity at 1470 and earns 16.2/3% profit, ठीक है. Find the cost price of that commodity. Okay. So selling price कितना है, it is ₹1470, right? Just a second. Okay. Shopkeeper sells a commodity at ₹1470 and earns 16.2/3% of profit. तो मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट इज 16.2/3. तो ये ऐसे है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये पावर नहीं है, ठीक है. तो गलत मत समझ लेना, ठीक है. सो दिस बिकम 16 into 3, राइट, विच इज 48 plus 2, ठीक है. 16 into 3 plus 2/3. तो 16 into 3 is 48 एंड प्लस 2 इज 50. तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, 50/3%, ठीक है. तो मेरे को एसपी गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है और मुझे सीपी निकालना है. सो नाउ यू, दिस इज वेयर दोज फॉर्मूलाज कम इन हैंडी, ठीक है, जो मैंने तुम्हें करवाए थे. सो आई हैव टू फाइंड आउट सीपी व्हेन प्रॉफिट इज गिवन. तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दैट सीपी इज इक्वल टू 100/100 प्लस गेन या फिर प्रॉफिट, ठीक है, इनटू एसपी, राइट.
सो दिस इज 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 50/3%, और तुम बाहर क्या करोगे, यू विल डू सेलिंग प्राइस दैट इज 1470, राइट. सो लेट्स सॉल्व इट. ये हो जाएगा, यहाँ पे कर रही हूँ 100 अपॉन, यू टेक द एलसीएम ओवर है, एलसीएम ले सकते हो ना, तो ये हो जाएगा 350/3, ठीक है, अपॉन 3, और ये जो 3 है ये इधर चले जाता है. यू नो ना कि अगर डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है, सो इट गेट्स मल्टीप्लाइड एंड रेसिप्रोकल हो जाता है. सो दिस बिकम्स 100 इंटू 3/350, ठीक है. और साथ में क्या है, दिस इज ये भी है 1470, ठीक है. सो मैं इसको लिख सकती हूँ, आई होप इट्स क्लियर, मेरी फोटो के बीच छिप ना जाए. 300 अपॉन 350 इंटू 1470 विच इज गोइंग टू गिव मी माई कॉस्ट प्राइस, ठीक है. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देन वी कैन डू इट बाय 7, ठीक है. 7 5 35, 7 2 14, 7 1 7 एंड 0 210, 5 6 30. तो आई हैव 6 इंटू 210 which is equal to 6 0 0, 6 1 6, 6 2 12. तो 1260 is my cost price of the commodity, ठीक है, when my selling price is given and my gain percent is given. तो ऑलवेज रिमेंबर द फॉर्मूला कि अगर मुझे सीपी ढूंढना है और प्रॉफिट गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, ठीक है. एंड अगर एसपी गिवन है, प्रॉफिट गिवन है या लॉस गिवन है, कौन सा फॉर्मूला आएगा. तो वो जो 4 फॉर्मूलाज है दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज डू लर्न दोज, ओके. चलो, okay, next question. So I hope everyone is solving, it's just not me who is solving the questions, ठीक है. The owner of a mobile shop charges his customers 20% more than the cost price, ठीक है. Okay, 20% more than the cost price. If a consumer paid rupees 15,000 for the mobile, what was the cost price of the cell phone, ठीक है. तो इसमें उन्होंने मुझसे क्या पूछा, दे आर आस्किंग मी द सीपी, ठीक है. 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस मतलब प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है. एंड मेरे पास सेलिंग प्राइस ऑलरेडी गिवन है, तो इसमें भी आई विल यूज वन ऑफ माय फॉर्मूलाज, ठीक है. तो कॉस्ट प्राइस व्हेन प्रॉफिट इज गिवन, जो अभी हमने पीछे यूज किया था वही वाला यूज करेंगे, 100, ठीक है, अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, इनटू एसपी, राइट. तो 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 20%, ठीक है. 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस मीन्स 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस में हम 20% ऐड कर रहे हैं. और सेलिंग प्राइस कितना है, इट इज 15,000. सो दिस गेट्स एडेड विच 100 अपॉन 120 इंटू 15,000, ठीक है. सो दिस गेट्स कैंसल्ड आउट. 3 4 12, 3 5 15, तो ये 500 हो गया, ठीक है. 4 2 8 एंड 4 5 20, ठीक है. सो दिस बिकम्स 25, 5 2 10 11 12, 1 2 5 0. तो ये क्या था, ये मेरा था कॉस्ट प्राइस, ठीक है. तो फॉर्मूला यूज करोगे एंड यू विल गेट इट, ठीक है. 20% of cost price करना था, and then when you will do 20% of this value and add it, what you will get 15,000 for the mobile phone, ठीक है. Okay, just a second. So I think the percentage and profit and loss problems are absolutely clear to you. Now we'll move on towards the next use of our percentages, which is simple interest. ठीक है, ये तुम्हारे एग्जाम्स में भी आने वाला है. What is simple interest? The money borrowed from the bank. ठीक है, that is not simple interest. We're talking about 3 things under simple interest, that is principal, interest and the amount. तो प्रिंसिपल क्या होता है, द मनी बोरोड फ्रॉम द बैंक, ठीक है.
या इफ़ यू बोरो समथिंग, जैसे अगर आपको लोन की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, आप बैंक जाते हो और उन्हें बोलते हो मुझे पैसे चाहिए एंड दे गिव इट टू यू, ठीक है। ऑफ कोर्स उसके अगेंस्ट कुछ गारंटी रखवानी पड़ती है कि अगर मैंने पैसे वापस नहीं किए, सो यू कैन टेक माई प्रॉपर्टी, यू कैन टेक माई लैंड, यू कैन टेक माई हाउस। तो वो कैसे होता है, जितना तुमने बोरो किया है ना पैसा, उसके हिसाब से उसी वैल्यू का सम एसेट यू कीप इट, मॉर्टगेज कर देते हो अपने लोन के साथ, ठीक है। ओके, तो उन्होंने बोला ठीक है हमने आपको पैसे दे दिए, बट व्हेन यू विल पे इट बैक टू मी, मुझे ये अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा अमाउंट चाहिए, क्योंकि तब तक मनी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो चुकी होगी, ठीक है। मतलब अब ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, पर जो भी है दे ऑलवेज आस्क फॉर सम एक्स्ट्रा अमाउंट। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो हम बैंक को पे करते हैं फॉर द बोरोड मनी, हम उसे इंटरेस्ट कहते हैं, और इस केस में हम उसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। लास्टली वी हैव द अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल, मतलब जितना मैंने बोरो किया था प्लस इंटरेस्ट जितना मुझे एक्स्ट्रा देना है। सो इट इज द टोटल मनी दैट आई पे बैक टू द बैंक, राइट, टोटल मनी टू बी रीपेड, ठीक है। अगर मैं इसका उल्टा देखूं, ठीक है, कि मैंने अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट कर दिया, इन एन इन्वेस्टमेंट मैंने अपने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए, मुझे उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, इन दिस केस आई एम गेटिंग इट, ठीक है। तो वो जो इंटरेस्ट होता है दैट इज ऑल्सो परसेंटेज ऑफ द मनी दैट आई इन्वेस्टेड, और ये जो लोन का इंटरेस्ट है इट इज ऑल्सो परसेंटेज ऑफ द मनी जो मैंने बोरो किया। तो चाहे मैंने इन्वेस्ट किया है चाहे मैंने बोरो किया है, ठीक है, अगर मैंने बोरो किया मैं इंटरेस्ट दे रही हूँ, अगर मैंने इन्वेस्ट किया है किसी में तो मैं इंटरेस्ट ले रही हूँ, ठीक है। लेकिन दोनों की जो कैलकुलेशन होती है वो बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट? अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, जो प्रिंसिपल है जितना बोरो किया है इनटू रेट, जितना उन्होंने रेट बोला है, जो अगर उन्होंने बोला है हम आपसे 10% एक्स्ट्रा लेंगे, 10% पर एनम, तो पर एनम का मतलब हर साल आपको 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जितना आपने बोरो किया था। तो अगर मैंने 20,000 बोरो किया था, मुझे एक साल के बाद उनको कितने पैसे वापस करने होंगे, 20,000 प्लस 10% ऑफ 20,000, ठीक है, विच इज हाउ मच, 2,000। तो मुझे टोटल मनी कितना वापस करना पड़ा, यहाँ पे देखो 20,000 प्लस 2,000 विच इज इक्वल टू 22,000। तो अब इसका फॉर्मूला है P इंटू रेट, मतलब ये जितना उन्होंने पर एनम बोला है, इंटू टाइम, मतलब जितने सालों के लिए मैंने लोन पे लिया है, अपॉन 100। तो ये जो 100 है वो रेट का 100 है, क्योंकि ये 10/100 होता है, ठीक है। सो इट्स P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100 विल बी माई सिंपल इंटरेस्ट, राइट। चलो, फाइंड द अमाउंट टू बी रीपेड एट द एंड ऑफ 3 years। तो टू बी पेड है तो मतलब टोटल अमाउंट मुझे जितना वापस करना है एट द एंड ऑफ 3 years व्हेन प्रिंसिपल इज 1,500 एंड इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, ठीक है। ओके, सो फॉर्मूला तो पता है P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100, बट याद रखना ये मुझे मेरा सिंपल इंटरेस्ट देगा, मुझे अमाउंट टू बी रीपेड नहीं देगा। तो प्रिंसिपल कितना है 1,500, रेट है 10, टाइम है 3 years के लिए बोरो कर रही हूँ, अपॉन 100। तो ये दिस गेट्स कैंसल्ड आउट, आई एम लेफ्ट विद 150 इंटू 3, ठीक है। 15 3 45, तो 450 रुपीज जो है मेरा वो SI है। तो अमाउंट टू बी रीपेड, अब यहाँ पे इसको मत टिक कर देना, ठीक है। मुझे वापस कितना पैसा देना है, जितना मैंने बोरो किया था 1,500, उसमें 450 रुपीज ऐड करनी है, ठीक है। ओके, सो दिस इज 0591950 इज माई आंसर, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू ऐड द सिंपल इंटरेस्ट इन द प्रिंसिपल, बिकॉज व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू फॉरगेट, मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल के बहुत खुश हो जाती थी एंड आई यूज्ड टू टिक द रॉन्ग आंसर, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि ये सिंपल इंटरेस्ट देता है मुझे ये फॉर्मूला कि मुझे कितना मनी एक्स्ट्रा रीपे करना है, पर टोटल कितना रीपे करना है उसमें प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट दोनों आएंगे, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। चलो, Anandi gives an interest of rupees 45 for 1 year at 9% rate of interest. What was the sum she borrowed? तो borrowed जो उसने किया था इसका क्या मतलब है, they are asking me the value of P, ठीक है, और इंटरेस्ट गिवन है, मुझे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, दैट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट है 45, P मुझे पता नहीं है, रेट आई हैव दैट इज 9%,
ठीक है, एंड टाइम भी है दैट इज 1 ईयर, तो ये 1 है डिवाइडेड बाय 100। तो अब मुझे p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। ये था यहाँ डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके इट विल गेट मल्टीप्लाइड विच इज 4500। ये है मेरा 9p, तो यहाँ p रह जाएगा एंड 9 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा विच इज 4500 डिवाइडेड बाय 9, एंड वी ऑल नो दैट 9 5s are 45 एंड ये 0, तो योर आंसर इज ₹500 व्हाट फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, सो ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आई होप आपको सिंपल इंटरेस्ट उसका फॉर्मूला, अब इसी केस में अगर मेरे पास p गिवन होता और r नहीं गिवन होता तो मैं रेट भी इसी फॉर्मूला में पुट करके निकालूंगी बाय फॉर्मिंग एन इक्वेशन। ठीक है, सो आई होप वट एवर वी डिड इज क्लियर टू यू। ठीक है, वी डिड द बेसिक्स ऑफ परसेंटेज, देन वी डिड द एप्लीकेशंस टैक्सेस के फॉर्म में, प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्म में, एंड सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में। ठीक है, and we'll do some more practice questions in the next session, maybe later on. ठीक है, so that's all for today, and I shall take you leave and see you tomorrow live at 2 p.m. right? I know my students are missing me. ठीक है, just a second, because I am missing you too. सीधी सी बात है, लाइफ में I love interacting with you people. तो लेकिन आज जितना कराया है, बी गुड स्टूडेंट्स एंड डू प्रैक्टिस इट। ठीक है, इट्स फॉर योर बेनिफिट, एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा, नेक्स्ट क्लासेस में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स, परसेंटेज, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, एवरीथिंग इज गोना कम इन योर 8th ऑल्सो, राइट? सो प्लीज डू प्रैक्टिस इट। नाउ आई शैल टेक यू अ लीव। ओके, so bye bye everyone, take care and enjoy your weekend. I'll see you tomorrow live at 2 p.m. Bye everyone, love you, love my kids.